جی السلام علیکم۔ تو پیارے دوستو، ہم اپنے وعدے کے مطابق موجود ہیں چیمپئن پنجاب فخر چنیوٹ استاد مٹھو لالی استاد حسن لالی صاحب کے ڈیرے پر۔ تو آج ان دونوں پیارے بھائیوں سے چند ایک باتوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جی اچھی طرح فرم بچو واشتا کدے کجی لے لا پتر۔ اپنے ساتھ کچھ دوستوں کو بلا لیں۔ آج تو آسمان بڑا نیلا ہے، بازی میں چاہیے تھوڑے 10 سال۔ کسی موبائل تو نال چلا لینا نا، دیکھ کوالٹی وغیرہ کا پتہ لگ جاتا، آواز ٹھیک ہے۔ جی تو بھائی زاہد خان ہمارے ساتھ ہیں جی۔ وعلیکم السلام خان جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی بھائی زاہد خان مٹھو بھائی کو سلام بول رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خالد شاہ صاحب وعلیکم السلام۔ 786 000 جی مہتاب بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ دیکھنے والے بھائی ذرا بتا دیں پکچر کوالٹی ٹھیک ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ تو شروع کرتے ہیں جی۔
جیسا کہ آپ بھائیوں کو بتایا ہے کہ ہم چیمپئن پنجاب جناب استاد مٹھو لالی صاحب، استاد حسن لالی صاحب کے ڈیرے پر حاضر ہوئے ہیں. ان سے چند ایک امور پر تبادلہ خیال کریں گے. عمران بھائی بڑھ تھوڑی دیر تک آپ تک ذرا بیٹھنے والا تو سامنے نہ آ جانا. جی آ جاؤ جتنے تنخواہ چنگا لگے. تو جناب ہم اب آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ استاد جی سے بھی وقت لیا ہے، ان کا وقت بھی قیمتی ہے. آپ بھائیوں کو بھی انتظار نہیں کروانا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی استاد جی؟ ٹھیک ہے. اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کے احسان جی الحمدللہ. اچھا، تو ہم آپ کے پاس آئے تھے. جی جی ہمارا ایک شوق تھا کہ ہم مٹھو بھائی سے ملاقات بھی کریں اور اپنے جو ہے نا ویورز ان کی بھی ملاقات کرائیں لائیو ویڈیو کے ذریعے. بہت شکریہ. تو آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں ہماری تو کوئی مہربانی نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں تو ہم تو بھائیوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں جناب. ماشاء اللہ جی، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید ترقی دے. آمین ثم آمین. جی تو مٹھو بھائی، میرا آپ سے نا میرے چند ایک سوالات ہوں گے، جی جی. جس میں میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ آج کل کبوتر پروری کی دنیا میں تقریباً پورے پنجاب میں ایک موضوع جو ہے نا وہ زیر بحث ہے. جی وہ ہے جی استاد ساجد بٹ صاحب والا، جی کہ ان کے ساتھ جو ہوا آیا وہ ٹھیک ہوا، اور اس واقعے کے تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اب آپ کا کیا موقف ہے کہ اس معاملے کو کس طرح نپٹانا چاہیے، کیسے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے؟ اس پر آپ ذرا کھل کر اپنا جو موقف ہے نا وہ ہمیں بتائیں جی. سب سے پہلی بات تو کاشف بھائی یہ ہے کہ جو یہ معاملہ چند دنوں سے ہو رہا ہے یہ معاملہ سراسر غلط ہے. ٹھیک. ساجد بٹ کے ساتھ جو ہوا ہے سراسر غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، جی. چاہے وہ ذاتی تنازع ہے یا کبوتر بازی کا تنازع ہے، جو بھی ہے غلط ہوا ہے. جی جی اس طرح ہونا نہیں چاہیے. بالکل. مگر جو اب ایشو بنا ہوا ہے وہ بھی غلط بنا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بائیکاٹ والا ایشو بھی نہیں جی ہونا جی چاہیے تھا، اس واقعے کے تناظر میں جو کچھ ہو رہا وہ ہے بھی غلط ہو رہا ہے. وہ بھی غلط. ساجد بٹ کے ساتھ جو ہے، ساجد بٹ ہمارے بھائی ہیں جی. سب سے پہلے وہ کبوتر پرور ہیں، جی ہمیں ان کا احساس ہے. وہ جو بھی ہے جیسے بھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سراسر غلط ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، جی اور جو آگے ہو رہا ہے وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. جی چلیں، جو ہونا تھا وہ تو پہلے ہو چکا ہے. اب تھا اس معاملے کو نپٹایا جائے. معاملے تب بھی طے ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے جی. اب جو ہو چکا ہے اس کے پہ بحث کرتے ہیں. جی. اب یہ چاہیے تھا کہ استاد مین نواز گمن صاحب اور استاد راجہ کاکا صاحب، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، ان کو معاملہ حل کرنا چاہیے تھا، اور ہم تیسری فریق اور دوسری پارٹیوں کو بھی بائیکاٹ کی جگہ پہ اس معاملے کو سلجھانا چاہیے، مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اگر ساجد بٹ رائٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ساتھ مکمل طور پہ دینا چاہیے، اور رائے کاکا صاحب کو کی پارٹی کو ان سے معذرت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، چودھری مین گمن پارٹی کو معافی بھی دے دینی چاہیے، ماشاء کیونکہ اللہ. نہ معافی مانگنے والا کبھی چھوٹا ہوا اور نہ معاف کرنے والا، بلکہ معاف کرنے والا سب سے بڑا دلیر ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، بوجھ دل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور معافی نہ مانگنے والا میرے سمجھ میں بوجھ دل ہوتا ہے. دونوں معاملوں میں نہ دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ معافی مانگنے میں دیر کرنی چاہیے اور نہ معاف کرنے میں دیر کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. دونوں سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے. بالکل. یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے معافی مانگنے سے عزت کم ہوگی اور معاف کرنے سے کم ہوگی. نہیں، دونوں معاملے میں آپ کی عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. اور دلیر شخص وہی ہوتا ہے معاف کر دینے والا. جی جی ٹھیک ہے،
تو ویسے بھی رات کو جب سو سب کو معاف کر کے سونا چاہیے، بے شک ٹھیک بے ہے، شک آپ کی وجہ سے کوئی کسی کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ بے شک جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو سب کو معاف کر کے سو۔ تو یعنی کہ جو آپ کی نظر میں ہو رہا ہے کہ دونوں پارٹی اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، اس کا معاملہ یہ کہ پہلے بیٹھے، مل کر بیٹھیں، اس کا جی فیصلہ کیا جائے، جی ٹھیک ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، ٹھیک ہے، وقار گجر صاحب غلط ہے، اس کو غلط کیا جائے، اس پہ بے شک سال 2 کا پابندی بھی لگ جائے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی راجہ کاکا گروپ سے کے ساتھ نہ پابندی نہیں بنتی اور نہ بائیکاٹ بنتا ہے، کیونکہ دیکھیں کاشف بھائی، ایک فیملی میں اگر ایک ممبر کچھ غلط کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی پوری فیملی کو سزا دی جائے۔ جی جی جو کرنے والا ہے سزائے اس کو صرف ملنی چاہیے، بالکل۔ باقی فیملی کو نہیں ملنی چاہیے۔ ماشاءاللہ اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح استاد وقار گجر صاحب خود استاد ہیں، اس کی زیادتی ہے، اس کے شاگردوں کو پہ بھی نہیں شوق کرنا چاہیے، اس شاگردوں کو بھی اجازت نہیں دینی، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے یار، اس سے بڑھ کے اور کیا سزا ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ بجائے اس کے کہ پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو پوری استاد راجہ افتخار کاکا پارٹی کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، وہ نہیں ٹھیک، کیونکہ ساری پارٹی کا تو اس میں قصور نہیں۔ غیر مناسب ہے۔ اب یہ بات دیکھیں نا کاشف بھائی، جو وقار گجر صاحب ہے، جی تقریباً یہ بات ہوگی کہ وقار گجر صاحب کی پارٹی کے ممبر بھی اس کو جانتے نہیں ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ وقار گجر صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، بالکل۔ ہماری پارٹی ہے، ہم چند اپنی پارٹی کے ممبر کو ملے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، باقی اس سے نہ ہماری ملاقات ہے۔ اب سزا غلطی میں کروں، سزائے راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جی یا ان کو کیوں ملنی چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے نا، جو پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں وہ شوق کر رہے ہیں، جو وقار گجر صاحب کو جانتے بھی نہیں، ان پہ پابندی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ہاں، ایک کمیٹی کی بات چل رہی ہے کچھ دنوں سے، ایک تجویز سامنے آئی ہے کہ اس پر ایک کمیٹی بنا دی جائے، تو اس کے متعلق آپ بات چل رہی ہے، میرے سننے میں بھی آیا ہے، جس میں استاد امتیاز چیئرمین صاحب، جی استاد امتیاز ہیرابینا والے، جی استاد ہمایوں بٹ صاحب، ایسے بڑے بڑے نام جو ہے ان کی کمیٹی میں نام ہیں، تو معاملہ سلجھایا جائے، زیادہ بگڑا نہ جائے، اور ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جی بالکل ٹھیک ہے، جو اصل حق ہے وہ پورا کرے، جی جی جس کا قصور ہے اس کو سزا ملے، جی جی ٹھیک ہے۔ سزائے شوق کے معاملے میں اگر معاف کر دیں، اس کو شوق میں بھی کہیں کہ آپ آ جائیں، تو یہ بہت بڑا ظرف ہوگا استاد چودھری مین نواز گھمن پارٹی کا۔ آپ کی پارٹی بھی کچھ زیر عتاب آئی ہے جی اس معاملے میں، وہ اس میں اس پہ آپ ہمارے اوپر یہ مسئلہ بنا ہے کہ استاد امیر مختار صاحب نے یہ کہا ہے، جب انٹرویو ہو رہے تھے، میرا بھی انٹرویو، میری بھی بات ہوئی ہے، ہماری پارٹی کی بھی ہوئی ہے، جی جی کہ استاد امیر مختار، بات یہ ہے کہ اس پارٹی نے یہ ایشو بنایا ہے، استاد سجاد اسلم بڑیچ صاحب نے، چودھری مین نواز گھمن صاحب نے، کہ ساجد بٹ صاحب نے قسم کھائی ہے، کلمہ بھرا ہے استاد امیر مختار صاحب کے آگے، کہ یہ معاملہ جو بنا ہوا ہے اس میں صرف کبوتر بازی کے نا کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک، اور استاد محترم استاد امیر مختار صاحب کو فون ادھر سے آیا کاکا پارٹی کا، استاد راجہ کاکا پارٹی کا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی قسم دیتے ہیں یہ کبوتر بازی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب 2 فریق قسمیں دے رہے ہیں، بالکل، اب قسم تو جھوٹی ہو نہیں سکتی، انسان ہی جھوٹا ہو سکتا ہے، انسان نعوذ جھوٹا باللہ، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ قسم کیسے جھوٹی ہو نہ سکتی جی ہے؟ نہ، تو نام جھٹلا سکتے ہیں، مسلمان ہیں جی، جی تو اس کا یار بہتر ہی، اس سے بہتر کوئی حال نہیں۔ استاد امیر مختار نے یہ کہا کہ میرے سننے میں آیا ہے، میرے سننے یا میری معلومات کے مطابق یہ کبوتر بازی کا معاملہ نہیں ہے۔ اب یار معلومات تو غلط بھی ہو سکتی ہے، بالکل، یہ تو ہم نے کوئی نہیں کہا کہ جو استاد امیر مختار نے یہ بات کی ہے نا کہ ہمارے معلومات کے مطابق، جی انہوں نے یہ بات دان نہیں کی کہ یہ ایسے ہے، وہ رٹ نہیں انہوں نے رٹی، جی جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق، جو بات میں نے سنی ہے اس بات کے میں نے مطابق، سنی ہے۔ اب یہ معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے جی کہ جو استاد محترم کو معلومات پہنچی ہے وہ غلط ہو، ساجد بٹ صاحب والا بات رائٹ ہو، ٹھیک ہے، جی جی بالکل، تو اس معاملے کو انہوں نے پھر زیادہ بگاڑ دی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں اب استاد امیر مختار صاحب نے رائٹ بات نہیں کی، حق کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، تو معاملہ سمجھنے اور سمجھانے میں نا تھوڑا سا الجھ گیا ہے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے شوق کے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے یار، شوق ہے، اگر دیکھیں کہ کاشف بھائی ہم آج بھی کہہ رہے ہیں ہمارا وقار گجر صاحب کے ساتھ، میں اب کہہ رہا ہوں شوق نہیں ہوگا، ہمارا چودھری مین نواز گھمن صاحب سے پارٹی کے ساتھ بائیکاٹ
हो या ना हो, जब तक इनके आपस में मामले नहीं सुलझे हमारा शौक नहीं होगा। हम आज भी उस्ताद साजिद भट्ट की फेवर में खड़े हैं, माशाल्लाह। ठीक है, आज भी हम उनके फेवर में। और बाकी उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब की, उसको किस चीज़ की सजा देते हैं, उसको किस चीज़ की सजा है? अगर अपना एक बेटा गलत हो जाए या माँ बाप का या कुछ नाफरमान हो जाए या किसी वजह से भी मसला बन जाता है, जी। तो फिर उसके वालिदैन को सजाए या उसके भाइयों को या कुछ सजा नहीं ना मिल सकती। बिल्कुल नहीं। अब गुज्जर साहब है, ठीक है, मेरी तो मुलाकात भी नहीं गुज्जर साहब के साथ, नाम किसके नाम से ही जानता हूँ। जी जी बात ये कि अगर गुज्जर साहब ने ज्यादती की है या लड़े हैं, जो भी मामला बना है, तो ये मामला गुज्जर साहब की हद तक ही रहना चाहिए। अब उसकी पार्टी का इसको में बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब इसकी सजा या राजा काका साहब को नहीं कहना चाहिए कि आपकी पार्टी से बाइकाट। और राजा काका साहब को उम्मीद करता हूँ कि पूरी पार्टी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि राजा वकार गुज्जर साहब के साथ नहीं मिले भी नहीं होंगे। अब उसको क्या सजा, जो बाहर बैठे शौक कर रहे, शौक की खातिर पाकिस्तान में शौक बहाल करके बैठे हुए हैं या बाकी लोग हैं, ठीक है ना, वो क्यों सजा उनको? ठीक है, वकार गुज्जर साहब के साथ शौक ना करें, उसके शिगिर्दों के साथ ना करें, उन पे बैन लगाना चाहिए, बैन लगाएं, साल का लगाएं, 2 का लगाएं, ठीक है, ये राइट बनता है, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर माफ कर दे तो इनकी आला ज़र्फी है जी उनकी, ठीक है ना जी। तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए कि राजा काका के साथ जो भी शौक करेगा मरा उनसे बाइकाट, ये कोई जवाब नहीं है। मतलब ये जो रवायत चल रही है बाइकाट बराए बाइकाट, ये बहुत गलत रवायत है। मामले को सुलझाना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। भाईजान मेरी समझ में, मैं अपनी समझ की बात करूंगा, किसी को बात अच्छी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी। मेरी समझ के मुताबिक ये सरासर गलत हो रहा है। ये कोई बाइकाट बनता नहीं है, जी जी, ठीक है ना, बाइकाट वाली बात नहीं है। जी जी, तो जिस तरह का बाइकाट पे बाइकाट किया जा रहा है, ये बनता नहीं किसी ग्रुप के साथ। मिलकर बैठे 2-3 पार्टियां आए, ठीक है, जो फैसला करें मंजूर हो। तो बाकी माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, माफ कर देना चाहिए। माशाल्लाह जी, ये माशाल्लाह उस्ताद मिट्ठू लाली साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी दोनों पार्टियों के लिए कि इस मामले को क्लियर किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए। बढ़ने से बात बढ़ती बढ़ती कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। तो पिछले दिनों में मैंने तो एक पोस्ट भी पढ़ी थी जनाब उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की तरफ से, उन्होंने बहुत खराज तहसीन पेश किया था उस्ताद सज्जाद असलम बड़ाइश साहब को कि उन्होंने बहुत दिलेरी से बहुत अच्छे माहौल में हमारे साथ मुकाबले तय किए हैं। अब भी उनको चाहिए कि ये मुकाबले जो बातें भी हमें सुननी पड़ रही है उन मुकाबलों के बाद ना, हाँ जी, बातें भी हमें सुननी पड़ रही है कि आप लोगों ने ये मुकाबले तय किए थे, जी जी, आप बताएं। हमें भी बातें सुनने से ज्यादा समय बढ़ाया, हमारा भाई है, मगर उनकी वजह से हमें बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही है, हम बहुत सारी बातों को फेस कर रहे हैं। अब क्या क्या कह सकते हैं। बस साजिद साहब की मैंने एक वीडियो देखी थी, उस पर साजिद साहब कह रहे थे, साजिद भट्ट साहब, कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह के बंदे, जब आपने उस अदालत में अपना फैसला छोड़ दिया तो फिर मामला खत्म करो। उससे बड़ी कोई अदालत नहीं, वहां से नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। कि मैंने अपना फैसला, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ये कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, साजिद भट्ट साहब अगर सच्चे हैं, वो राइट पे खड़े हैं, तो मेरा ईमान ये कहता है जब उन्होंने अपना फैसला अल्लाह की अदालत में छोड़ा है ना, वहां पे फैसला होगा, वहां फैसला होगा। यहाँ तो फैसला गलत हो सकता है, हम गलत करेंगे, बाकी कमेटी गलत करेगी, अल्लाह की जात कभी फैसला गलत नहीं करेगी। जब आपने छोड़ा तो फिर आपका बाइकाट नहीं बनता। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में इस मामले पर जितनी बात होनी चाहिए थी आपने बहुत तफसील के साथ इस मामले को खोल कर बयान कर दिया है। अब हम आते हैं जी कबूतर परवरी के शौक की तरफ। चूंकि ये मामला जरा अहम बना हुआ था, इस पर भी बात करना जरूरी थी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये मामला हल भी हो। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, सारे भाई हैं, इंशाल्लाह मिल बैठ के मामला हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस दफा आपने माशाल्लाह बहुत दिलेरी से मुकाबला जात तय किए हैं, तो आप अपने हरीफों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? देखें कि शौक दिलेरी का नाम है, बेशक, ठीक है ना, दिलेरी से ही करना चाहिए। हाँ जी, हार जीत बनी हुई है अजल से और चलती रहेगी, ठीक है। शौक में आप सबसे पहले ईमानदारी से करें, माशाल्लाह, ठीक है, ईमान को तराजू के साथ रखें। और अगर आपको लगता है कि कुछ कबूतरों में गड़बड़ीशन हो गई है, कबूतर गलत आ गया है या इधर उधर की बात है, वो मुनसब को नहीं भी पता चले, तो आप अपने इंसाफ करें। क्या बात। तो हरीफ जितने भी मेरे बहुत काबिल एहतराम है जी, मेरे भाइयों की तरह हैं जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा पंजाब के बड़े स्टार खिलाड़ियों के साथ मेरा शौक हो रहा है जी। मैं दिल से उनकी इज्जत और कदर करता हूँ माशाल्लाह। और शौक साफ सुथरा होगा इंशाल्लाह।
तो शौक में खराबी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, बिल्कुल और मोहब्बत का पैगाम है यही फैलाना चाहिए। माशाल्लाह। कितने मुकाबले अब तक आपके तय हो चुके जी? 61। 61। इसमें मेरे ख्याल से पंजाब से बाहर की भी छत्ते शामिल हैं। ये पंजाब के बाहर नहीं सकते। हाँ हमने ये नहीं देखा कि मौसम किस जगह का ठंडा और किस जगह का गर्म जी। है, हमने शौक करना है, हमने बस शौक करना है। क्या बात। ये जो लोग कहते हैं ना वहाँ ठंड है, वहाँ ठंड है, वहाँ ठंड है, वहाँ गर्मी है, हमने कभी वो देखा नहीं। हमने क्या शौक बात। करना है। कबूतर तो नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है ना, जेठ तो जेठ ही है, चाहे ठंडा या गर्म, जेठ तो है ना। जी। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह की ज़ात रहमत करने वाली वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगी। यानी अपने कबूतर शाम तक उड़ने चाहिए। आपके अपने शाम तक उड़ने चाहिए, लोगों को नहीं देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। उनके कितने उड़ते कितने नहीं उड़ते, आप अपने अपने कबूतर को। हाँ जी। हमारे शौक में नए आने वाले शौकीनों के लिए आप रहनुमाई करते हुए कुछ बताना चाहेंगे कि आजकल कौन सा दाना पानी डालना चाहिए कबूतरों को, क्योंकि आजकल के दिन कबूतर परवरी में बहुत अहम है। जी जी, देखिए बात ये काशिफ भाई के जो कबूतर परवर है ना प्रोफेशनल, उनको तो सब चीज़ों का पता है। जी ठीक है ना, जो इतने अरसे दराज से शौक कर रहे हैं। जो हमारे भाई न्यू हैं, न्यू कमर कह लें, जी ठीक है, वो जो शौक कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि इन मौसमों में नए कबूतर ला के अपने कबूतरों में ना ऐड करें, माशाल्लाह। ना छोड़ें, ठीक जी। है। और वैक्सीन की पाबंदी करनी चाहिए, ठीक हो गया। प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल करें, जी ठीक है। और दाना जो है वो अच्छा डालें, दाना जितना भी आप डालेंगे अच्छा डालें, ठीक है। इस दानों में तो दाने 10-15 भी हो जाएंगे। अगर वो नहीं मुकम्मल कर सकते तो आप चने, बाजरा, गंदम, सरसों डालें पर पट्टी में, जी जी। ठीक है। तो ये तो लाजमी डालें। बाकी अगर आप मजीद दाना, आप क्या डाल रहे हैं अपने कबूतरों को? मैं 7-8 दाने डाल रहा हूँ, ठीक। मक्की डाल रहा हूँ, चने भी डाल रहा हूँ, सरसों भी डाल रहा हूँ, सूरजमुखी भी डाल रहा हूँ, तिल भी डाल रहा हूँ, माशाल्लाह। बाजरा भी बाजरे की रेशो ठीक ठाक रेशो होती है मेरी, सदई तो बाजरा डाल रहा हूँ, खुरदम डाल रहा हूँ, माशाल्लाह। मतलब इस तरह के दाने मजीद डाल रहा हूँ। लो जी, हमारे साथ जनाब उस्ताद हसन लाली साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम जी हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो मिट्ठू भाई, आपसे ये पूछूंगा कि कुछ लोग सिरप भी आजकल देते हैं कबूतरों को, सिरप वगैरह। वो ये होता है कि एंटीबायोटिक होता है कि कुछ ये जो चीज़ें डाल रहे होते हैं ना हम लोग, जी इसकी वजह से मेरे डिस्टर्ब हो जाते हैं कबूतरों के, इन दानों की वजह से। कुछ दाना हीट अप भी होता है और कुछ ठंडा मिजाज का दाना भी होता है, वो कहीं ना कहीं असर हो भी जाता है। इसके लिए बेहतर ये हाल है कि आप कबूतर के मैदे पे ज़रा जोर दें कि उसका मैदा जो हफ्ते बाद ना आप एक फ्लैजल का ढक्कन, ठीक है। सिरप का एक बुरुफन का ढक्कन और एक मोसीगार का सिरप, ठीक है। वो जो फ्लैजल है ना वो और मोसीगार मैदे पे ठीक रखता है, ठीक रखता और फ्लैजल जो बुखार वगैरह की अलामत है ना उसके लिए बेहतर है। ये ताकत के लिए कोई सिरप वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए? ताकत कभी कभी आपको नुकसान भी दे जाती है, ठीक है। जिस तरह कबूतर को जिस तरह आप जितना सादा रखेंगे उतना बेहतर है। लोग डालते हैं, मगर मैं वो बात कर रहा हूँ जो हम कर रहे हैं। बाकी बहुत खूब। जो ताकत वाले करते हैं वो आपको ताकत वालों से पूछना चाहिए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूब जी। तो कोई एहतियाती तदाबीर और आपके जहन में हो कि वो करनी चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि नया कबूतर नहीं डालना चाहिए। भाई ये कि सफाई का ख्याल रखें, जी हाँ, कुल्लों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो बाकी यही है कि ज़्यादा बंदों का रश नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह। जो बंदे मतलब शौक कर रहे हैं, जैसे कि हम 2-3 ये हैं, तो हमारे सिवा और को बंदा छत पे इन दिनों पे तो ख़ास तौर पे नहीं जाना चाहिए। परपट्टी के दिन है तो ये एहतियात वाले हैं, और परपट्टी जिन कबूतरों की उनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी एहतियातें करें तो मेरे ख्याल में बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल माशाल्लाह। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा ब्रीडिंग के मुतल्लिक जी, कि कबूतर में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें होनी चाहिए जो ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हों? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे फर्स्ट आप किसको समझते हैं, सेकंड किस चीज़ को समझते हैं, और थर्ड वो उसके बगैर कबूतर ब्रीडिंग में नामुकम्मल है? वो 3 चीज़ें मैं बता दें जी। 3 चीज़ों का तो नहीं पता, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड।
वही ब्लड लाइन ही काम करती है। तो हमारा तरीका यही है कि हम ब्लड लाइन देख के कबूतरों को जोड़े भी लगाते हैं और उन्हीं से काम चला रहे हैं कि पीछे उनकी गैरती है, खून होना चाहिए। माशा वो खून ही हमेशा लड़ाई करता है, गैरत वाली चीज ही लड़ाई करती है। माशाल्लाह बदनस्ला तो लड़ाई कर भी नहीं सकता, वो क्या दिन भाग जाते हैं हमेशा मैदान छोड़ के। माशाल्लाह। तो ब्लड लाइन रखें, ब्लड लाइन देख के जोड़ा लगाएं, तो आपको पता हो आपके जमाए हुए ब्लड लाइन कबूतरों का। तो माशाल्लाह। हमारा तरीकेकार तो ये बात आपकी फेवरेट ब्लड लाइन कौन सी है जी? है। हमारे पास अपने कबूतर हैं जी, अब वो लाल बादशाह कबूतर हैं, माशाल्लाह। फिरोजपुरी कबूतर हैं, और अब उनमें इजाफा हुआ है पिपला वाले कबूतरों का। माशाल्लाह। ये पिपला वाले कबूतर आजकल एक बहुत मुहिमा बना हुआ है कि जी हर बंदा अपनी क्या सराई कर रहा है। सियालकोट वाले कह रहे हैं कि जी ये हमारे कबूतर हैं, लाहौर वाले कह रहे हैं जी हमारे कबूतर हैं। आप इनके मुतल्लिक क्या कहेंगे? ज्यादातर ये सियालकोटी कबूतर हैं और पुरानी नस्लें उन्होंने संभाल के रखी हुई माशाल्लाह वालों ने। तो मेरे ख्याल में लोगों ने इतनी ज्यादा अच्छी प्योरिटी में नस्लें नहीं संभाल के रखी हुई जो पिपला उस्ताद अकमल खान ने बनाए हैं। उन्होंने अपनी एक तरतीब से कबूतर बनाए हैं, तो ज्यादातर उनमें सियालकोटी कबूतर हैं, फैसलाबाद वाले कबूतर भी हैं और फिरोजपुरी कबूतर भी हैं। माशाल्लाह। तो मिक्स एक खिचड़ी बना ली है, 7-8 खून का मुरक्कब उन्होंने इकट्ठा कर लिया जी। है। हर बंदा तो फिर ये इस तरह के कबूतर इकट्ठे कर भी नहीं सकता, तो ये बनाने वाले की भी महारत है। बेशक तो ये ग्रेड जाता है, इसको देसी कबूतर वैसे आप कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये उस्ताद अकमल खान को जाता है। माशाल्लाह। उन्होंने बड़े पुराने कबूतर थे उनके पास, सियालकोटी, जी जी। तो वो उड़ा रहे थे शुरू में। फिर उन्होंने फैसलाबाद से कुछ कबूतर लाए, वो भी मोतियों वाले जी जी। कबूतर, और साथ में फिरोजपुरी कबूतर उन्होंने मिलाए। तो फिर 7-8 खून का जब मुरक्कब बना, जब 7-8 ताकतें मिल गई, तो फिर आपको पता है जब एक इतनी ज्यादा ताकतें मिल जाएं तो फिर आगे से रिजल्ट कैसा आएगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इसी तरह हमारे उस्तादों के कबूतर हैं जी काले मुंह वाले, वो भी 4-5 नस्लों का मुरक्कब है। तो अच्छा उस्ताद हो, अच्छी मेंटेन करके अच्छी नस्लों के कबूतर जब वो बनाते हैं उनसे कबूतर, तो वो कामयाब होते ही होते हैं। तो ये भी एक पैगाम जाता है दोस्तों को कि अच्छे खून के कबूतरों से अपने कबूतरों को मेंटेन करें। बिल्कुल ऐसे ही। काशिफ भाई, असल में बात ये है, आजकल मीडिया का दौर, जी सोशल मीडिया पे हर बंदा आप उस्ताद बन रहा है। जी जी। ठीक है, आप देखते हैं, बात नहीं करनी चाहिए कि वो कबूतरबाज सिखा रहे हैं जिनको खुद आती कोई नहीं, जिन्होंने कभी जेठ की धूप नहीं सेकी। ठीक है, जो एसी में बैठे हैं जी जी। वो बता रहे होते हैं अच्छा कबूतर कौन सा, बुरा कौन सा। जी जी। ठीक है ना, कबूतरबाजी प्रैक्टिकल से, जी ठीक है ना, प्रैक्टिकल करें, उड़ाए। जाल जब भरे होते हैं ना, कबूतर ठापे लगा रहे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ती जाती पता चलता है अब नस्ली कौन सा, बद नस्ला कौन सा। माशाल्लाह। और कबूतर देख लेना, जेठ में जो उड़ता है वो दलेर कबूतर उड़ता है, वो दिल भाग जाते हैं। जब मैदान लगते हैं ना, मैदान लगते हैं, जो भी वो इंसान हो या कबूतर हो वो मैदान छोड़ देगा। काशिफ भाई, जेट की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बिल्कुल एक जेट होता है 40 वाला, बिल्कुल। एक 42 वाला। असल कबूतर की बहादुरी और दलेरी का पता चलता है 45 से ऊपर। फिर माशाल्लाह। वो जेट जरा अलग असल अपनी हालत में आता है, खुश्क जब होता वो है, अपने पूरे हालत तेवर में दिखाता है। फिर तेवर दिखाता है ना, तब कबूतरों का पता चलता है। ये नहीं कि आप 40-42 में उड़ा के कहने कि ये हमारे शाम तक उड़े हुए, तब तक आप धोखे में रहेंगे। ये मैं बात आपको जनरल बता रहा हूँ। जब 45 डिग्री से ऊपर जाएगा ना जेट, फिर पता चलेगा कौन कौन कबूतर आपके पास खड़े हैं आपके साथ और कौन कौन भाग गए। जब मुश्किल वक्त आता है ना किसी पे, तो फिर ही अच्छे दोस्तों का पता चलता है कि कौन कौन उसके साथ है और कौन भाग गए। इस तरह कबूतरों का भी इसी तरह पता चलता है। जब मालिक पे पूरा वक्त आ गया है या कोई आजमाइश में, तब पता चल जाएगा कौन कौन कबूतर उसके साथ खड़े हैं। कोई बहादुर कबूतर ही खड़े होंगे। जी जी। तो इसलिए ये उनकी नस्लें बनाए, उन कबूतरों की नस्लें। मैंने पीछे यहाँ पर आपके तकरीब तकसीम इनामात पर एक नज़म पढ़ी थी, उसमें एक शेर था जनाब उस्ताद अकमल खान साहब के हवाले से, कि पंजाबी की नज़म थी कि कुलिया अकमल खान वाला पहले बन के रख सिराने, उन्ना अपने कबूतर पहले आप उड़ाने। यानी कि इसके मुतल्लक आप क्या कहेंगे कि क्या कबूतर खुद चेक करके उड़ा के जोड़ों में डालने चाहिए या जहाँ से कोई अच्छा मिला डाल लिया? देखिए भाई, अगर दूसरे घर से लाने हैं ना, दूसरे घर से आपने कबूतर लाने हैं, वो कबूतर लेकर आए कि जो उनके पास उड़ रहे हैं।
जिनमें इनके नाम है, चेक शुदा कबूतर है। चेक शुदा लेके फिर आपको टाइम बर्बाद नहीं कर। जो हम ये ठुले मारते हैं ना, इधर से लाया तो ये पार बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा है, ये हमने वो भी कबूतर देखे हैं प्रैक्टिकली कि देखने में बहुत जबरदस्त होते हैं, पर जोड़ हड्डी बात है। पर ये सब कुछ परफेक्ट है। तो मैदान में वो काम नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसे भी आज मैं कबूतर आपको ऐसा दिखाता हूँ, लाल बादशाह बड़ा कबूतर लेकर, वो मेरे 4 खून से रिलेटेड है कबूतर, 4 खून का मरकब है वो कबूतर। तो देखने में उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मगर हमारे पास टेम्पो में ये 8-8 बजे तक वो हमारे पास कबूतर बैठता रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या 2019 में 4 बहन भाई थे, चारों पंजाब कप में थे और चारों एंड तक रहे हैं, क्या एंड तक उड़े हैं। अब वो हमारे आगे वही काम कर रहे हैं। उसका यकीन माने काशिफ भाई कसम से, उसका बाप भी चैंपियन था और उसका दादा भी चैंपियन। क्या बात है, क्या बात, नस्ल दर नस्ल वो चैंपियन कबूतर है माशाल्लाह। हमने तो अब बहुत ज्यादा वो कबूतर खिलाए आगे, बहुत अच्छे कबूतर मुझे मिले हैं उस्ताद मीर उस्ताद से, माशाल्लाह। अनमोल कबूतर, काजल कबूतर, अब मैं उनमें उनको चला रहा हूँ। तो जो हकदार है उसका उसकी ब्रीड चाहिए, बेशक ठीक बेशक है। वो रंग बेशक। काला है, चाहे पीला है, चाहे चिट्टा है, चाहे जो भी है, रंग पे नहीं जाना चाहिए। हाँ। ब्रीड पे काम करते हैं और ब्लड लाइन ही काम करती है। हम तो बात देखते हैं खूबसूरतियां, लंबी चूंचे देखी, वाइट आंखें देखी, मर गए। ये कोई कबूतरबाज नहीं, कभी उड़ा तो उनको देखो। यानी कि वो जो कहा था कि बोतियां रंगा वाले कबूतर ना तेरे ना मेरे। हाँ, हाँ जी माशाल्लाह जी। यानी कि आप कहते हैं सबसे मजबूत चीज जो है ना वो ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन। हाँ जी, अच्छे, मेरे ख्याल से तो अच्छी ब्लड लाइन के कबूतरों के वजूद भी अच्छे होंगे और उनके पर भी अच्छे होंगे, क्योंकि वो ब्लड लाइन अच्छी है। उनमें ये है कि अगर आपका कोई कबूतर ब्लड लाइन में से और भी निकल आता है ना थोड़ा सा, जब जी। आप उसको जोड़े लगाए उसको उधर मेंटेन कर लें। जी अगर कबूतर का कद ओवर ज्यादा बढ़ गया है, हड्डी ज्यादा बढ़ गई है, जी। उसके साथ मादी का कोई चुनाव ठीक कर लें। जी, थोड़ा सा मसला आ भी जाता है अच्छे में भी, मगर उसको मेंटेन कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब ये अच्छे को अच्छे रखना ही असल कमाल है। ये कबूतर माशाल्लाह। ये आपका कौन सा कबूतर है ये जी? लाल बादशाह कबूतर है बड़ा ब्रीडर कबूतर है जी। ये खुद हमारे पास 8-8 बजे तक उड़ा हुआ है। अच्छा ये नहीं माशाल्लाह, कि जिस दिन 8 बजे बैठा है ना, उससे अगली फड़क 7:30 बैठा है, क्या बात। 7:30 बैठ के फिर 6:37 पे बैठा, हाँ, फिर 6:17 पे बैठा है, ऐसे उड़ा हुआ कबूतर जेठ में। यानी कि ये एक चैंपियन कबूतर है दिनों के जिसका 84 घंटे बने थे। माशाल्लाह। अब हम इसके पर का भी शौक करवाएंगे। ये है जी एक चैंपियन कबूतर का पर है जी। बाद में आपको जो बताना चाह रहा था ना, जी जी उड़ाने की, अब देखिए इसकी बगलें जो मुकम्मल जिस तरह होती है ना, कहते जी जी, ऊपर बड़ी है, बगल हो, वो भी ऊपर नहीं आए, है, वो भी ठीक नहीं है। और जिस तरह परों की तरतीब होनी चाहिए वो भी नहीं है। जी जी ठीक है। और दुम का बैलेंस तुम भी भारी है इसकी। जी जी, ठीक है। स्केल की तरह दुम्ब है इसकी। ये देखें इसके पर है, माशाल्लाह। मगर अब हमने इसका निचोड़ निकाला है। ठीक है। इसकी आंख का जरा शौक करवाएं। ये देखिए इसकी आंख, इसमें मेरे फिरोजपुरी कबूतर भी हैं जनाब। अच्छा, बहुत खूब। तो ये आपके कबूतर हैं जी, जो लाल बादशाह के नाम से। लेके आ पट्ठा लेके आ, इन्हें भतीजे 2 लेके आ, जो ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, बल्कि मादी लेके चिड़ियां वाली मादी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ है। ये ऐसी होता है काशी भाई, जी जब शौक होता है फिर ब्लड लाइन ही काम आती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो बाकी तो आपको पता है फिर आजकल जो ट्रेंड चले हुए हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल बता रहे जी हैं कि ये बैलेंस ऐसे होना चाहिए तो वैसे होना चाहिए, जी। मगर ये गारंटी पीछे आपने देखी होगी कि फेसबुक पर एक बहस चल रही थी, वो किसी साहिब ने कहा था इतने इंच का कबूतर हो, वो भी खूब बात चल रही थी। बस यार आप क्या करें, हाँ बात आप ब्लड लाइन की बात कर रहे थे, आपको बात बताता हूँ। 2019 में ये जो कबूतर आपने देखा है ना, जी, ये 4 बहन भाई उड़े थे उस माशाल्लाह कप में, जब हम पंजाब चैंपियन बने थे। जी। तो 11वें कबूतर की सिलेक्शन पे हमें जरा आके ना डिसाइड कर रहे थे 3-4 कबूतरों में भी किसकी सिलेक्शन करें। एक किसी कबूतर की बहन जो सुबह 9-10 बजे बैठ रही थी फिरतों में, मैंने कहा इसको डाल लें, तो बाकी ने भी कहा नहीं ये जल्दी बैठ, मैंने कहा नहीं डाल दें, ये ब्लड लाइन अच्छी है डाल दें।
और वो हमने सिलेक्ट कर ली 11वीं, और वही बाजियों में कोई फिर 300-400 बजे पहले नहीं बैठे। मतलब माशाल्लाह। उसकी गैरत का पता था कि ये जरा ना हाँ। ये ब्लड लाइन आजमाई हुई है। पूरा हमने पकड़ा है। ये जो आपने कबूतर देखा है ना, जी। उसका पट्टा है, अच्छा, मगर इसकी माँ पंजाब चैंपियन है, क्या बात है। ठीक है, नराली मादा। हाँ जी, हाँ जी। ये उसका पट्टा है और अच्छा रोका हुआ है हमने जोड़ों के लिए, जी, ठीक जी। है। इसका माँ बाप भी जोड़े में लगा अभी दिया आपने बाप उड़ा देखा कर। इसका? अभी आपने इसका बाप देखा है। हाँ जी, इसकी इसके माँ पर का जरा शौक करवा दो। के पर खुरम ने वैसे ऐसे पकड़ा है, हाँ, पर तो खुरम ने सारे तोड़ दिए इसके। पर के साथ तो खुरम भाई ने जुल्म कर दिया। खुरम ऐसे ही करता है। माशाल्लाह। अब एक दफा अब ये देखिए कबूतर है, जी, इसकी इसके आंख का मैंने शौक है। इसके मैंने ना बच्चे छोड़े हैं उड़ाने के लिए। इसके अच्छा, बहुत जबरदस्त उड़ रहे हैं मेरे पास। कमाल जर्रेदार आंख है जी, बहुत खूब। अब ये अच्छा अब ये कबूतरी है, जी, इसके साथ मैंने लगाई है, इसके साथ अब इसके बच्चे निकलने वाले हैं। ये मैंने खुद नहीं उड़ाई, मगर इसको उड़ाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि ये उस्ताद मीर मुख्तार साहब के घर की चिड़ियाँ वाली ब्रीड है, माशाल्लाह। ठीक है। ये अजमूदा कबूतर है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बात बता रहा था कि किसी के घर से लाने तो अजमूदा लेकर आए, हाँ, जो ब्लड लाइन उनके पास काम कर रही है, तो फिर वो मुश्किल में नहीं आपको पड़ेंगे। इसके परों में ना बक्सुए लगाए हुए हैं, जी, जी, ताकि वो दरवाजा खुले भी ना, जी, जी। तो ये मिस ना हो जाए। ये बड़ी कबूतरी है। अच्छा मिठू भाई, जी, माशाल्लाह उन्होंने ब्रीड बनाई हुई है। हम जब इस तरह के कबूतर देखते हैं ना, जी, जी, तो हम उन्हें बटेरे ही बोलते हैं, जी, जी। सियालकोटी। जी, जी। आप क्या कहते हैं? काशिफ भाई बात ये है कि जब आपने मिक्सचर बना लिया है ना कबूतरों का, जी, बटेरे भी, अली वाले भी, जो जो आप सात वाले भी। सात वाले वो मुख्तलिफ कलर्स के निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। सारे पार गुजरे होते हैं। बेशक। सात वाला भी निकल आएगा उसी में से, हाँ, और आप देखेंगे कोई अली वाला भी निकल आएगा उसी में से, बिल्कुल, कोई बटेरा भी निकल आएगा। जी। वो सारे बाकी जो ब्लड लाइन होती है वो सारी गुजरी होती है, ठीक बिल्कुल। है, मिक्स होती है, मगर कलर जो है ना वो अलग अलग निकाल देते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। इनमें से जालदार भी निकलते हैं, अच्छा, जालदार भी, हम बटेरे हैं, ये जालदार स्लेटी भी जी। निकालते हैं, स्लेटी दूसरे, ये कलसीरे भी निकालते हैं। जी। मिक्स हो गया ना सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कबूतर जो है परमोज भी निकालते हैं, परमोज वैसे सादे भी निकालते हैं। माशाल्लाह, यानी कि उन्होंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है, जी हाँ। तो उसमें हर तरह के निकलते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और सवाल है जी, जी जी करें शौक से। कबूतर उड़ाने के लिए कौन सी 3 चीजें जरूरी हैं जी? सबसे पहले तो उड़ाने वाला बंदा जबरदस्त परफेक्ट हो, ठीक है। संभाल अच्छी हो। अगर आपके पास संभाल अच्छी नहीं है तो आपका चैंपियन कबूतर भी फलाह, ये हकीकत बात बता रहा हूँ। जी, तो उसके बाद आप कबूतर की संभाल करना जानते हैं तो आप कबूतर उड़ाते जाएंगे, चाहे आप 50 दिन उड़ा लें, कोई मसला नहीं है। उड़ाने वाला बंदा ज़बरदस्त होना चाहिए और संभाल अच्छी हो। वो ही जो ज़बरदस्त होगा उसके पास संभाल भी अच्छी होगी। यही चीज़ें जब हो जाएंगी तो, और दाना पानी भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। ये दाना पानी तो खैर आपके पास ज़रा ये तीसरी कैटेगरी में आ जाता है। पहले आपके पास जो है ना संभाल अच्छी हो, तरीकेकारी अच्छी हो, जैकी अच्छा हो। जैकी अच्छा। एक बंदा बहुत मेहनत करता है जी। उसको मेहनत करता है, मेहनत के साथ उसको पता नहीं कि मैंने आए कबूतर की संभाल कैसे करनी है। मेहनत उसकी तो उल्ट हो गई, जी, जी। वो तो नुकसानदेह है ना। तो ये देखिए कबूतर है, माशाल्लाह, बहुत ये खूब कबूतर है जी, जी, जिसके भतीजे ने उस्ताद मीर मुख्तार की छत पे ना जी, पूरे पंजाब को विन किया हिट की बाजी में। माशाल्लाह, ये बड़ा काजल है जी, वो इस काजल का पट्टा है। माशाल्लाह जी, क्या आंख है जी कबूतर की। इसके भतीजे ने ना पूरे पंजाब को विन किया हिट के मुकाबले में। बोस्की कलर की आंख है कबूतर की, दानी माशाल्लाह। चाह रहे होल्डर ले आने में। अंबर का भी काफी बड़ा कबूतर है जी। जी जी, आप देख लें बड़े साइज का कबूतर है। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छा जी, सारे कबूतर का शौक करवा दें। बहुत आला जी, क्या बात है माशाल्लाह। तो ये मशहूर ज़माना ब्रीड काजल, बहुत बड़ा नाम हुआ है, बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं इन कबूतरों के जी। बहुत ही इसकी बहन ने 10 दिनों में 132 घंटे बनाए थे। माशाल्लाह, 10 दिन। क्या बात है जी। 13 घंटे से ऊपर कुछ टाइम एवरेज से। हाँ, माशाल्लाह, बहुत खूब जी। यानी कि आज का पैगाम है कि कबूतर अच्छे हों, जैकी अच्छा हो ऊपर उड़ाने वाला, संभाल अच्छी हो। संभाल के मुतल्लक मैं हसन भाई आपसे एक सवाल करूंगा कि कब तक उड़ाने वाले को कबूतर के सर पे रहना चाहिए? हाँ, मसला तरीक़ेकार तो यार ये होता है कि काशिफ भाई अभी अपनी बात बता रहा हूँ जी। तो सुबह रात भी हमारे अलार्म होते मुख्तलिफ। जी। 3 बजे भाई मिट्ठू ने आना है कबूतरों के पास, जी। 1 बजे मैंने आना है, जी फिर 4 बजे फिर आ जाना है एक बंदे ने। जी। तो अब संभाल कर ये इतना बंदा वहाँ तो छुट के ज्यादातर मैंने देखा लोग कबूतर को जो ना पानी नहीं पूरा करते, जो मैंने देखा है। और अपने शागिर्दों की बात कर रहा हूँ। जी जी। अगर उनकी छतों पर रिजल्ट नहीं आता तो वो अपनी मेहनत दुरुस्त करें। तो ये इतना करना पड़ता है, पूरा मेहनत पर अपना टाइम को नहीं देते। तो उसके लिए ये कि जब सीजन में तो आप कोई भी गफलत नहीं कर सकते, इनसे हट नहीं सकते पीछे। थोड़ा सा भी 10 मिनट भी आप पीछे हुए तो काफी आपको नुकसान होता है। बिल्कुल। सीजन में आपको पूरा आए हुए कबूतर को पलटाना चाहिए जी। आए हुए कबूतर अगर देखें आप मुख्तलिफ बंदों का तरीक़ेकारी ये होती है कि अब कोई लोग वैसे जो है ना उड़ाते हैं वो खाली नहीं करते कबूतर को। तो जो लोग खाली कर देते हैं सुबह ही तो वो उसको आए कबूतर को फिर क्या पलटाना। जिस कबूतर में रैश है उसको तो खाली करना चाहिए। माशाल्लाह। पानी थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना चाहिए या एक दफ़ा ही पी ले जितना पीना है? नहीं, ये मुख्तलिफ अपने अपने उस्तादा की तरीक़ेकारी होती है। तो 5-10 मिनट के बाद कोई बिल्कुल उसको पूरा पानी दे देते हैं, पी लेते हैं, और कुछ वक्फे वक्फे से देते हैं। यानी गेम का हिसाब है, जिसकी गेम जैसे बनी हुई है वो वहीं पर रहे, आपका ये कहना है? नहीं देख रहे अब जो बंदे को बेहतर लग रहा है, जिसकी तरीक़ेकारी ठीक है, उसका रिजल्ट आ रहा है, वो अपनी गेम से ना हटे। मेरे एक सिंध के दोस्त हैं जी, चैंपियन है वहाँ पर, तो उन्होंने एक बात बताई कि जब कबूतर वापस आता है ना तो हम उसको छोड़ते हैं, आगे पानी रखते हैं खुला, वो पी लेता है, हम उसको पलटा देते हैं, पलटाने के बाद हम फिर उसके आगे पानी रख देते हैं, वो फिर पी लेता है, हम फिर पलटा देते हैं। कहता है 5 दफ़ा भी अगर कबूतर पानी पीता है ना तो हम 5 दफ़ा पलटाएंगे उसको। ये अब उनकी गेम है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। उड़ते भी हैं उनके कबूतर, सिंध की गर्मी में शाम शाम तक उड़ते हैं, तो यानी कि अपनी गेम है। जरूरी हो जाता है जी, मौसम की वजह से भी कबूतरों के अंदर रैश रह जाती है। ठीक है, रैश वाले कबूतर फिर आपको पता है ठीक नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मरने के भी इम्कान हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कबूतर ठीक है तो उसको नॉर्मल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी देंगे वो चलेगा। माशाल्लाह। संभाल जब तक कबूतर आपका फिट ना हो, मालिक को चाहिए कि उसके ऊपर रहे। यानी कि आज हर बंदा जो है ना वो इस कोशिश में है कि हमें जी कोई उड़ाने वाली गोली मिल जाए, कोई पानी मिल जाए, कोई कहवा मिल जाए। इससे ज़्यादा बंदों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने असातिज़ा से संभाल सीखें। यार आपका कबूतर ही अगर फिट नहीं है फिजिकली, हाँ, तो दुनिया की कोई गोली उसको उड़ा ही नहीं सकती। हाँ, वो तो किसी छप्पड़ में ही गिरेगा ना जी। भाई वो वैसे भी गिर जाएगा, अगर उसको गोली आप नहीं भी लगाएंगे तो वो गिर जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कबूतर फिजिकली फिट नहीं है, वो मुकम्मल तैयार ही नहीं है, तो वो गोली लगाने का फायदा ही कोई नहीं है। फिर वो इल्ज़ाम आ जाके उस्तादों पे आ जाता है कि उस्ताद ने दवाई अच्छी नहीं दी। पहले तो खुद देखना चाहिए कि हमने क्या किया है कबूतर। बिल्कुल बिल्कुल। तो संभाल अच्छी होनी चाहिए, कबूतर तैयार होना जी। तो किसी भाई का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम भाई काशिफ बिलाल साहब अल वहाब फर्नीचर वाले जी। बिल्कुल जी, फी सबीलिल्लाह बता रहे हैं जी, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। तो और कोई दोस्त किसी किस्म की बात पूछना चाहे तो वो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे जी।
ये भाई काशिफ को टिप्स ले लो ना भाई काशिफ अगर भी جی کاشف بھائی آپ کو بھی بتانا چاہیے ماشاءاللہ بڑے شوقین بڑے استاد بڑے نامور آدمی ہیں آپ تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے اگر پوچھنے کے لیے ہمیں آنا پڑا تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہم بھی منڈی باوردین آ جائیں گے اگر یہیں بتانا چاہیں تو یہیں پر بتا دیں اب ایک سوال ذرا جو ہے نا وہ جی وہ سندھ والے بھائی جنہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی نا جی پلٹانے والی وہ ہمارے ساتھ لائیو ہے ماشاءاللہ جی غلام شبیر بھائی ہیں جی اب ایک میں نا ذرا اپنے ضلع کے متعلق بھی پوچھنا چاہوں گا ہمارا ضلع ہے ہمارا شہر ہے ہم یہاں پر رہتے ہیں تو آپ ضلع چنیوٹ کے شوق کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا شہر ہے ہمارا سٹی ہے جی اس سے محبت ہے ہماری پہچان ہماری پہچان ہے جدھر سے پیر ہوتا ہے ہمارا علاقہ ہے نا جی بالکل۔ علاقے وائز پہچان ہوتی ہے انسان کی ہاں جی ہم یہ بالکل نہیں دیکھیں گے کہ اس کا نام نہ ہو اب کچھ لوگ اس کو کیش کر رہے ہیں کہ ہمارا تو وہ دور تھا ہم تو ایسے کرتے تھے جی یار جو وقت گزر گیا اس کو کیا دیکھنا اس میں کیا ہوا ہے جی اب آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے ماشاء ٹھیک ہے نا جو ہوا سو ہوا جو اب پرانی باتیں لے کے بیٹھے اس کو چھوڑے جو ٹرینڈ چلے ہوئے کبوتر بازی میں وہ اختیار کرے یعنی کہ جو پنجاب کے طریقہ کار ہیں جیسے پنجاب میں شوق ہو رہا ہے جی ویسے کرنا چاہیے جی ویسے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ دیکھیں کاشف بھائی چنیوٹ میں کتنے سالوں سے کبوتر بازی چل رہی ہے جی بالکل اور جی یہ نہیں کہ چنیوٹ میں کبوتر باز اچھے نہیں ہے کبوتر اچھے نہیں بہت اچھے کبوتر بھی اور کبوتر باز بھی بہت اچھے ہیں ماشاء ٹھیک اللہ ہے مگر وہ ایک پابند گیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم تو بہت لیٹ آئے کبوتر بازی پہ ان کی نسبت جی جی بہت دیر سے آئے نا ان کی نسبت تو پنجاب نہ کھیلتے تو نام نہ ملتا بے شک ٹھیک ہے یعنی کہ جو اللہ نے عزت دی ہے وہ پنجاب کے اس دائرے میں آنے کی وجہ سے ملی ہے اگر پابند کبوتروں میں اور شہر کی حد تک رہتے تو شاید ایسا نام نہیں تھا ہوتا بلکہ یقیناً نہیں ہو سکتا تھا کاشف بھائی آپ نے پابند کبوتر کھیل کھیل کے دیکھے ہیں سارا کچھ دیکھا ہے ٹھیک ہے 11 بازی میں پابند اڑائی ہیں اب جو باتیں کرتے ہیں نا کہ 11 پابند اڑائے تو پتہ چلے کوئی یہ تو بتائے 11 بازی پابند ہم سے کھیل کر کون جیتا ہے ماشاء اللہ اسی بات پہ پابند پہ بھی آ جائے نا وہ باتیں جی، کرتے جی۔ ہیں کہ اب یہ اوپن کھیل رہے ہیں جی وہ بندہ تو سامنے آئے نا کہ جس نے ہمارے ساتھ 11 پابند کھیلی اور وہ جیتا ہو ہم سے پابند میں بھی جیتا ہو جی جی کاشف بھائی بات دلیل بالکل دلیل کے ساتھ ہوتی ہے ایسی جی کوئی ہے تو سامنے آ جائے جی۔ کہ پابند میں بھی ہم سے جیتا ہو پابند کھیل جی۔ کر بھی ہم پابند بھی کھیلے مگر اب ٹرینڈ چینج ہوا ہے ہمارے گروپوں کے ساتھ واسطہ ہے کہ ان میں ہمیں پنجاب کے علاوہ ہماری گنجائش نہیں بچتی بے شک ٹھیک ہے یا تو اپنا اپنا علاقہ لوگوں نے اب کور کر لے کہ ہم جس علاقے میں کھیلیں گے اس علاقے کو نہیں کھلائیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پلیٹ فارم ایک ہونا چاہیے جو نیو کھلاڑی آ رہے ہیں بہت اچھے نکلیں گے اگر 2 سال کا موقع دو لڑکوں کو سال میں بہت اچھے اچھے پلیئر ان کا سامنے آ جائیں گے ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے نہیں یہ کہ پابند کبوتر اڑاؤ اور یہ ڈر کے زمرے میں ہے دلیر ماشاء نہیں اللہ ہے یہ بوجھ دلی کے زمرے میں آ نہیں چنیوٹ سے میرے خیال سے کئی مقابلے آپ کے ساتھ طے ہوئے ہیں چنیوٹ والوں نے کیے ہیں ایک مقابلہ چنیوٹ سٹی سے ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 166 بھائی اور میں یہ کہتا ہوں انہوں نے بڑا دلیری کے ساتھ مقابلہ طے کیا ہمارے ساتھ کس نے استاد شوکت صاحب نے ماشاء اللہ ٹھیک ہے ہم ان کی دلیری کو سلاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی اور جو آلریڈی پہلے پنجاب روڈ کے ساتھ تو ہمارے 2-4 خطوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ جو پابند کبوتروں والا ٹورنامنٹ تھا جی۔ وہ بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے وہ ضلع بہادری والا جی جی اس کو اوپر پوری رینج دی ہے پوری ماشاء رینج میں یہ جو پلیئر آتا ہے وہ کھیلیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو میں ٹورنامنٹ کراتا ہوں میرا اعلان ہوتا ہے جو مجھے حصہ نہ بھی اپنے ٹورنامنٹ میں دے وہ آ کے ہمارے ٹورنامنٹ کھیلے ماشاء اللہ جی ہم نے بالکل ڈرنا نہیں ہم نے شوق کھلانا ہے بالکل جی اور اچھے پلیئر نکالنے ہیں چنیوٹ میں اچھے پلیئر پیدا ہوں گے بنیں گے تو وہ ہمیں فخر چکا ماشاء اللہ سب کو ساتھ لے کے چلنا اگر کوئی اور بندے آپ کے ساتھ چنیوٹ میں سے مقابلے طے کرنا چاہیں جس طرح آپ کے لگے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ بھی ہوگی نہیں ریکوائرمنٹ ہماری کوئی نہیں بسم اللہ بڑی خوشی ہوگی جو پنجاب کے قوانین ہیں جس کے مطابق ہمارے مقابلے طے ہوں گے جسم وہی اصول ہوں گے جی ان کے ساتھ مقابلے طے کریں بڑی خوشی ہوگی ماشاء اللہ برادرانہ ماحول میں جی انشاءاللہ ماشاء آج اللہ تک کسی کو اگر ہمارے مقابلوں سے آیا تو آپ بتائیں ہاں نہیں جی آج کل تو جی ماشاءاللہ لوگ آپ کی دعوت شوق دینے کے انداز کو سراہ رہے ہیں اور اس کی مثال پیش کر رہے ہیں جی دیکھو کیسے انہوں نے دعوت شوق دی ہے ایسے دیا کرو یہ تو لوگوں کا پیار ہے محبت ہے جی اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور پیار کے شوق ہوتا ہے جی پیار سے شوق کرنا چاہیے
हाँ जी जैसे शौक प्यार का ही होना चाहिए। पहले ही हम बड़े बदनाम हैं, कबूतरबाज, आपको पता है। और हाँ ये जी। साजिद भट्ट वाला वाकया जी जी बड़ा ही जो है ना, इसमें बड़े शौक में खराबी पैदा आई है। और इस वजह से ये हुआ है कि साजिद भट्ट के साथ तो ज्यादती हुई, बेशक। ये तो बिल्कुल मानते हैं उसके साथ ज्यादती। कोई भी बंदा किसी के साथ भी जुल्म करता है तो चलो, अगर इस अदालत में इंसाफ नहीं होता तो अल्लाह ताला की अदालत में जरूर इंसाफ मिलेगा। बाकी इसकी वजह से ये हुआ कि कुछ लोगों को बहाना मिल गया भागने का। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अब हर बंदा बाइकाट, हर बंदा बाइकाट। अब फर्ज करें मैं इधर बैठा हूँ चिनियोड में, तो मेरा इस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है, मैं मुलवस भी नहीं हूँ। अब मेरे साथ जो बाइकाट कर रहे हैं तो मेरा क्या कसूर इसमें? अब ये आप बात बता दें, ये तो ज्यादती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शौक खराब करने वाली बात है। हमें फर्क फिर भी नहीं पड़ना। बेशक अगर हमने 61 मुकाबले तक लगे ना, जी जी अभी 20 मुकाबलों का और चांस है जी। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर उसमें अगर 5 छक्के निकल भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर शौक पर असर पड़ेगा जी। उनको ही पड़ेगा जो ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना, क्योंकि यार शौक प्यार मोहब्बत का होता है, जी, जी। दिल का होता है, करे। बिल्कुल। बाकी इस टॉपिक पे पहले बहुत बात हो चुकी है, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हो गई, काफी तफसील से बात हो गई जी, सैर असल गुफ्तगू हो गई है। चिन्योट में को बंदा आपकी नजर में है जो शौक के लिए कुछ बेहतरी कर रहा हो जी? सारे ही हैं जी। सबसे पहले तो आप बेहतरी लेके आए ना, आप भी कब करवाते हैं चिनियोड का, और आपने जी। एक हद बंदी रखी हुई। ये सवाल मेरा आपसे, ये आप क्यों करते हैं कि आपने चिनियोड के अंदर एक हद बंदी रखी हुई है कि दरिया की पुल इस साइड पे नहीं आना, तो उधर नहीं? इस बारे में ये मेरा सवाल आपसे। नहीं नहीं, मैं बात काटूं आपकी। काशिफ भाई के साथ मेरी बात हुई है। काशिफ भाई ने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज किया है कि हम जिला ओपन करना चाह रहे हैं और शौक को फरोग देना चाह रहे हैं। तो हम तो ये कब से कह रहे हैं? काशिफ मैं फिर भी जनाब मोहतरम उस्ताद हसन लाली साहब के सवाल का जवाब दूंगा। वो जी हमारे व्यूवर्स को पता होना चाहिए, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए जी। तो हसन भाई, हर चीज के लिए ना एक होम ग्राउंड होता है। सही बात जी, उसकी बाज रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप भाइयों को ये बखूबी इल्म होगा कि अल्लाह के फजल से अभी तक मैं चिनियोट में अकेला हूँ, मेरा प्लेटफार्म नहीं बना। ठीक है। मैं पिछली दफ़ा मैंने ना वो सिटी की जो वो आप रेंज की बात कर रहे हैं, वो ही कप उड़ाया था। बाहर की छतें ली हुई दोस्तों की निकाल दी। मैं माजरत खा उन दोस्तों से, क्यों कि मजबूरियां थी। सही कह रहे हैं। तो हसन भाई इस दफ़ा मैंने 2 कप बनाए हैं, एक उसी रेंज का, उसी कानून का, बिल्कुल सही। खुद जो दायरे में रहकर अपने मतलब है कि अपने बनाए हुए कवानीन के तहत खेलना चाहे, एक मैदान मैं उनको भी दूं, और एक मैंने तहसील चिनियोट का बनाया जी कप। उसके कानून पंजाब कानून होंगे जी, जो पंजाब वाले कप्पों के कानून होंगे ना वो ही होंगे। अच्छा, इससे आगे आपकी बात है कि जी पुल दरिया ये आप क्रॉस क्यों नहीं करते, तो मेरा आज आप भाइयों से ये वादा है, हाँ जी, ऑन द रिकॉर्ड वादा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द काशिफ चिनियोटी ज़िले का टूर्नामेंट करवाएगा। बेशक मेरे सामने बहुत सी रुकावटें हैं, ये मैं जानता हूँ। तहसील के टूर्नामेंट में भी मेरे सामने रुकावटें हैं, मैंने उनको फेस किया है और ऐलान नहीं कर रहा। मैं आपको अंदाजन बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा नेक्स्ट सीजन में ही मैं जिले का टूर्नामेंट भी करवाऊंगा। तो अभी मेरे भाइयों को मुझ पे गिला तो नहीं होना चाहिए जी। कोई नहीं है। नेक्स्ट सीजन में कह रहा हूं जी, इस सीजन में क्या? इस सीजन में मेरे पास ना वो प्लेटफार्म इतना, मतलब है कि मेरे पास टीम नहीं है। छत्ते देते हैं हम आपको, हम सारे इलाके की छत्ते हम देते आपके हैं। साथ उनको कवर करना भी एक काम है। हम कोई शिकवा हो किसी की छत का, जो छत्ते मिलेंगी आपको, हम जुर्मदार छोटा मुंह बड़ी बात ना करवाएं। नहीं। तहसील का उड़ाने दे, मैं तो ये कहूंगा। नहीं, आपने फिर वही बात की तहसील चनियोट, आप उधर से 20 हम किलोमीटर लालियां ले में लेंगे, हम तहसील लाली में 2 किलोमीटर इधर आप नहीं आएंगे। बात तो ये थोड़ा सा फासला है, 5-4 एकड़ है जिधर के जी जी बिल्कुल बाउंड्री बिल्कुल है ना, जी। तहसील लाली और तहसील चिनियोट की। वैसे शौक की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये हाथ बंदी नहीं होनी चाहिए, शौक खुले ही होना चाहिए सब। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं भी खुद भी इसी बात पे कायल हूँ कि शौक खुली हदूद और खुले दिल और खुले कानून के और खुले कबूतरों के साथ होना चाहिए। बहरहाल जो फैसला आप करेंगे, तहसील का उठाएंगे या अपने सिटी का उठाएंगे, हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह कोई जी, ऐसी ठीक बात है। नहीं। आप हमें
ऐड करें या ना करें, हम आप भाइयों के साथ हैं। माशाल्लाह। ठीक है, आप सारे चिन्नौर वालों के साथ हैं, कोई जी, बात जी। नहीं, वो जैसा भी करेंगे ठीक करेंगे, जो हमारे साथ खेलना चाहे वो भी खेले। एक छोटी सी मेरे शहर में तशवीश चल रही थी, वो भी बाइकाट वाली थी। आज का जो इंटरव्यू है ना, वो बाइकाट पे काफ़ी हो गया है कि कोई मैसेज था, गालबन हसन भाई ने किया था कि ताहिर हरल साहब के डेरे पे इकट्ठ होगा जी 6 तारीख को, तो उसमें जो हमारे साथ खुले कानून खुले कबूतरों के साथ खेलना चाहेंगे वो खेलेंगे, बाकी के साथ बाइकाट होगा। ये बाइकाट लफ्ज़ कोई अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ, वो असल बात ये है कि हमने जो जिला चिन्नौर के जो पंजाब में एक खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, जी जी, मेरे साथ उनका एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है माशाल्लाह। बाजी लगाने का। मैंने कहा बाजी में आपके जो आप कहेंगे वैसे लगे कि एक फूल के हाथ पे भी लगेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, उसमें मेरा बहुत खूब जी। मेरा एक आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी। उन्होंने कहा बताएं, मैंने कहा उसमें आपको पंजाब कवानीन के मुताबिक टूर्नामेंट उड़ाना पड़ेगा। टूर्नामेंट तो ऑलरेडी उड़ाते हैं ना। उन्होंने खैर चिन्नौर अगर रब्बा को कबूतर निकाल दिया को था उड़ाते भाई हैं। मैंने। चिन्नौर और रब्बा बैर था। अच्छा। मैंने कहा इनको ऐड करें और ओपन कबूतरों का उड़ाएं, जैसे मर्जी मेरे साथ बाजी लगाएं। ये जो बादरी वाला टूर्नामेंट जिस नाम से इसकी मशहूर, शर्त थी है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा हमें मंजूर है। मैंने कहा आप ओके करें। ठीक है। अब वो हुआ है कि अब मैंने चिन्नौर की जो बढ़िया पार्टियां हैं जो कबूतर जिस तरह सैफुल्लाह खान बलवाल ग्रुप का है, जी जी, और हमारा उस्ताद अमीर मुख्तार खान पिपला पार्टी, और उसके बाद उस्ताद सुहेल निसार खान साहब सदीक ग्रुप। अब सदीक ग्रुप भी पंजाब में आ गया है, बिल्कुल आ गया ना, मेरे जी साथ जी, बाजियां भी लग हाँ गई। जी सैफुल्लाह खान बलवाल ग्रुप भी पंजाब में आ गया, हमारे साथ बाजियां भी वैसे भी सारे जी जी उस्ताद फौजी खालिद जी, वगैरह के जी। साथ भी मेरी बाजी है। जी, ठीक है, जी। और हाजी मजमान पार्टी से भी बाजी है, वो पंजाब के लोग। अब पीछे बंदा कौन बाज रहा है जो शौक नहीं कर। जी जी, फिर उसमें अगर जो ये सारे ग्रुपों को इकट्ठा करने की लड़ाइयाँ, अगर मेरे से कोई नाराज जी। है वो बेशक रहे, मगर शौक एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, जो पंजाब में शौक कर रहे हैं, तो वो सारे एक जैसे हैं, वो सारे एक दूसरे के मुखालिफ हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर प्लेटफार्म एक पे आके शौक करते हैं। हम ये चाह रहे थे कि सारे एक प्लेटफार्म पे हैं, शौक करें। ठीक है, एक दूसरे की नाराजगी नहीं कि ये उड़ेगा मैं नहीं उड़ूंगा, ये बात बनती को नहीं। फिर हमने सबने ये फैसला किया, हम इतनी पार्टियां इकट्ठी हो रही, जो हमारे साथ पार्टी इकट्ठी नहीं होगी, जो कहेगा हमने इसके अंदर आके नहीं खेलना, फिर वो हमारे किसी में शौक नहीं करेगा। बस समझे, जो हमारी बात ही नहीं मानता, जी जी, जो हमारे साथ नहीं आके मिल बैठता, शौक ही नहीं करता, कहता ये टूर्नामेंट उड़ाएंगे तो हम नहीं उड़ेंगे, तो फिर उनसे हमारा क्या शौक है, हम कैसे शौक करेंगे। अच्छा बिट्टू भाई, एक बंदा कहता है कि जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम आपके रूल्स को मानते हैं, मगर अब अभी हमारे पास इतनी तैयारी नहीं है कि हम खुले कबूतरों के साथ उड़ाएं, तो उसके साथ आपका क्या रवैया होगा जी? काशिफ भाई ये तो बात है पुरानी। जो बंदा सारा साल अपने कबूतरों को दाना डाल लेता है ना, वो 11 या 15 कबूतर तैयार कर ही देता है। ये तो बात ही होती है, ये तो ऐसी बातें ही होती हैं कि वो कहेगा हमारे तैयारी नहीं। तैयारी सबके पास होती है। कौन से कोई बंदा 11 कबूतर पर पट्टी करता है? हाँ, नहीं नहीं 50-100 तो करते ही हैं सारे। करते हैं बिल्कुल। ये बातें बना के बैठे हैं, ना खेलने वाली बात है। जिसने खेलना है उसने खेलना है, जिसने नहीं खेलना उसने कहना मेरे पास कबूतर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये बहाने हैं, बहानों से बाहर निकलना पड़ेगा, तब भी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अब पीलख लेके बैठे हुए हम आज भी, दुनिया चांद पे पहुंची है, हम आज भी पीलखों की बात कर रहे होते हैं। हमारा पील रखा देखे जी, हमारा पील रखा देखे, इनसे बाहर निकलेंगे, बाहर देखेंगे बाहर क्या हो रहा है, तो तब भी कुछ तरक्की की तरफ निकलेंगे हम। जी, मैंने पिछले दिनों ना एक टूटा फूटा, जैसे कि मैं शायर हूँ वैसा ही शेर बनाया था कि कुएं में ही उम्र बिता दी जिसने, क्या बात है, कुएं में ही उम्र बिता दी जिसने, उस मेंढक से पूछते हो कि दुनिया क्या है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं कैसा, आपके शेर बहुत जबरदस्त है, और आपकी शायरी भी, और वैसे आप इंसान भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी उम्र अता करे जी। तो एक मेरे ना ज़हन में तजवीज़ आई थी मिट्ठू भाई, चंद दिन पहले ऐसे ही बैठे हुए, वो ख्याल के परिंदे ने परवाज़ की, तो मैंने सोचा कि क्या वजह है कि तमाम अज़ला से पीछे मेरा ज़िला क्यों है। जबरदस्त। तो मुझे एक बात नज़र आई, वो ये कि हमारा ज़िला चिन्नौर जो है ना, उसमें एक जामिया कमेटी नहीं है। हमारी, जैसा कि हम सिटी चिन्नौर के रहायशी हैं, तो मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ कि मेरी कमेटी जो है, मैं उनके हर फैसले का तहे दिल से उसको कबूल करता हूँ,
मगर ये बात भी अजर मिन शम्स है कि मेरी कमेटी का वजूद मेरे बाईपास के अंदर अंदर है, और रिट, अब मैं ये नहीं कहता कि कहीं भी नहीं चलती, रिट भी महदूद एरिया तक चलती है। तो मैंने ना एक तजवीज़ पेश की थी, चूंकि ज़िला चिन्योट है तो कमेटी का वजूद पूरे ज़िले पर मुश्तमिल हो और कमेटी की रिट पूरे ज़िले पर कायम हो। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ठीक कह रहे हो, होनी चाहिए, जिला लेवल की कमेटी होनी चाहिए। जी, 3 तहसीलें हैं, 3 तहसीलों से मेंबर हों, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो बाख्तियार हों, देखिए वो मेंबर भी हो जिसका आपने पहले करैक्टर देखा है, जी जो बासूल हो, जी, फैसला अपनी जात पे आ जाए तो टकड़ी झुकनी नहीं चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। ठीक, अगर इस बारे में कोई कोशिश करता है तो आपका तामन उसके साथ होगा। हम सबसे पहले उनके साथ खड़े। हम माशाल्लाह। तो चाहते हैं, बात आप जिले की करें कि आपका जिला पीछे क्यों है, अल्लाह के फजल से आपका जिला पीछे नहीं है, अब नहीं रहा। पीछे नहीं है। जी जी, अल्लाह खैर रखे, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, जब तक अल्लाह पाक हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। कबूतरबाजी की दुनिया में और मिलता अब रहेगा। अल्लाह के फजल से वो मामला नहीं कि चिन्योट का नाम नहीं है, चिन्योट और जनाब नगर हुआ का नाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर भी लोग जानते हैं। बेशक बेशक। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब ये कहें कि अब हम आगे आप एक और अब हम सब मिल के इसका नाम निकालेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत ठीक है? खूब। कहीं हमसे जी। मिस होगा तो हमारे भाई चिन्योट वाले और आ जाएंगे, बिल्कुल। कि वो कायम करेंगे जी जी कि सब जिला जो है उनके कबूतरबाज अच्छे हो, हमारे में भी काम नहीं है। जी, मुझे जी। बड़ी खुशी होती है जब ये हमारे दोस्त भाई पंजाब लेवल पे आते हैं। जी, जी। ठीक है, और इंशाल्लाह हिम्मत कर रहे हैं, जी। हम करेंगे, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। हमारा तावन इंशाल्लाह उनके साथ है। इधर जो भी मामलात है हमारे वो जी, चलते जी। रहते हैं। हाँ जी, वो तो हर जगह ही तो चलते हैं जी। इंशाल्लाह हमारे उनके साथ तावन भी, और हमारे पूरे खेल ग्रुप के साथ चिन्योट से माशाल्लाह अच्छे मुकाबले तय हुए हैं। उस्ताद मीर मुख्तार से भी हुए हैं माशाल्लाह। और सैफुल्लाह खान पुलवार साहब पार्टी के साथ हुए हैं, तो चिन्योट में ही है ना। पिछले दिनों में आपके डेरे पर यहीं पर सैफुल्लाह खान ग्रुप और सुहेल अंसार साहब ग्रुप, उनके भी मुकाबले तय हुए हैं। ये भी एक खुशाइंद बात है जी। देखिए कि सफदर बाजवा साहब ने भी चैलेंज किया था जी जी, पंजाब को। बिल्कुल। तो 4-5 छतों ने पंजाब तो चिन्योट से उनसे मुकाबले भी किए, उनके जी जीते जी, भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग मजीद आएंगे। ये डारी होता है, जब उतर जाता है ना तो हाँ कुछ हाँ, भी नहीं फिर होता। बात कुछ नहीं रहती। डरना नहीं चाहिए, मैं यही मैसेज दूंगा, डरे नहीं। हाँ जी, डर गया तो मर गया, बस डरना शौक नहीं। दिलेरी का नाम है जी। अगर आप एक दफा गलती करें उसको रिपीट करें कि मैंने क्या गलती की है, नेक्स्ट जी। टाइम उस गलती से बचें। अगर माशाल्लाह। आपको समझ नहीं लग जी। रही, आप इल्म सीखने में भी शर्म तो आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इल्म सीखने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बेशक। शर्म करके वो मर गए। हाँ ठीक है, ये मत सोचे कि हम बहुत बड़े उस्ताद हैं। ठीक है, जी जी, जात अल्लाह की सिर्फ कंप्लीट है, बाकी कोई जात कंप्लीट नहीं। माशाल्लाह। ठीक है, सीखें, उम्र का जो भी तकाजा है सीखें। जी जी, अगर ये ना समझे कि मेरी उम्र 50 प्लस है तो मैं 30 किसी से पूछूं ना। किसी से पूछूंगा, इंसल्ट नहीं होगी। बेशक बेशक। ठीक है ना, पूछें आप। सीखना हर उम्र में चाहिए। अब मुझे फर्ज करो नौज़बिल्लाह अगर नमाज नहीं आती, मेरी उम्र 70 साल भी है, जी जी, तो मैंने अल्लाह को जवाब देना, मुझे 70 साल में भी सीखनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए। बेशक, इसमें शर्म कोई भी इल्म में ना, इल्म में गफलत नहीं करनी चाहिए। सीखें, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे उस्ताद से रब्ता रखें, जिस तरह भी होता है पूछें। असातिज़ा के बारे में भी बड़े जो है ना वो मामले हैं। आप असातिज़ा को कोई पैगाम देना चाहेंगे जी? कैसे? भाई शागिर्दों के साथ उनका रवैया कैसा होना चाहिए, शागिर्दों को कैसे गाइडेंस देनी चाहिए, इस मुतल्लक। काशिफ भाई बात ये है कि जो उस्ताद है ना, जी कहते हैं, आपने पढ़ा है कि उस्ताद का दर्जा बाप के बराबर होता है। बेशक। ठीक है, उस्तादों पे भी ये फर्ज होता है कि जो हमारा शागिर्द है वो हमारा बेटा है और हमारा छोटा भाई ऐसा है। ठीक जी है, जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं वैसे उनसे भी प्यार किया जाए, माशाल्लाह, अपने बहुत खूब। शागिर्दों से। हाँ जी। और शागिर्दों पे भी ये लाजम है कि कभी आपके बाप ने आपके साथ कोई थोड़े से मसला बनाया तो आप उसका इशू मत बनाएं, बैर बात ना बताएं, आपस में बैठ के बात करें। ठीक है, आजकल शागिर्द भी वैसे हैं, उस्ताद भी ऐसे कर रहे हैं, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। ठीक है? माशाल्लाह। और
یہ جو استاد شاگرد کر کے بعد میں دوائیاں پیسوں کے ساتھ دیتے ہیں، یہ بات بھی سروسر غلط ہے. آپ نے کبھی کسی کو پیسوں کے ساتھ دوائی نہیں دی؟ جس دن دیکھیں گے ہم کبوتر بازی چھوڑ دیں گے. ویل ڈن، ماشاء اللہ، بہت خوب جی. ہم نے ان کو بھی دوائیاں دی جن کو ہمارے شاگردوں کے ساتھ بازی اور ہماری امید رکھ کے ہم کا یہ آپ بھی لے جائیں. ماشاء اللہ، جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا میں تو جیت نہیں نہ لکھی. بے شک بے اگر شک. دوائیاں کام کرتی ہوتی نا جی جی، بھائی، حکیم لقمان کے بچے نہ مرتے. بے شک بے شک، ایسے ہی ہے جی. ہاں تو اللہ کی ذات پہ جس پہ راضی ہے کام ادھر ہی چلتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے شاگرد کو دوائی دینا اور ایک ہوتا ہے شاگرد کو دوائی بتانا، جی. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، سوال ہے آپ کا زبردست ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ شاگرد اس قابل ہونا ضروری ہے. برتن دیکھ کر ڈالا جائے. دیکھیں اگر ہوئی آپ اس کو دیتے ہیں جی. تو فوراً آپ کو چھوڑ کسی اور پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے، آپ نے اپنا نقصان کر دیا. پچھتاؤ گے آپ. ٹھیک ہے. شاگرد ہیں میرے اپنے شاگرد ہیں، میں نے سب کچھ بتایا ہوا، کوئی بات نہیں چھپائی ان سے. اچھا، ماشاء اللہ. اور کچھ ابھی تک نہیں بھی بتایا. دیکھیے جس طرح آگے چلتے رہیں گے، جس طرح ایمان پختہ ہوتا جب شاگرد اس سٹیج پر پہنچے گا جہاں پر اسے بتانا چاہیے تو آپ ضرور بتائیں گے. ہے ضرور بتائیں. اور بتایا بھی ہوا ہے. یہ بتانا نہیں میں نہیں بھی ہوتا جب پیر اڑا رہے کبوتر. ماشاء اللہ، بہت اگر خوب. پہنچ بھی نہیں نہ سکتے. جی جی، بالکل بنایا بالکل. ہوا ہے، سارے شاگرد پاس ہے. ہاں جی، استادی پاک بھی دی کہ وہ استاد ہیں، وہ آپ کبوتر اڑا رہے ہیں. ماشاء اللہ. خود مختار ہے، مطلب ہے کہ آپ کے کافی سارے ہمارے شاگرد. تو یار کاشف بھائی دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے کوئی 150 سے پلس شاگرد ہے. ماشاء اللہ، آج بالکل. تک آج کی گھڑی کی بات کر رہا ہوں، کل کا پتہ نہیں ہے. ہم بھی انسان ہیں، گنہگار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. جی. حضرت جس کی اولاد ہے اس نے غلطی کی تو ہم نے کیسے نہیں کرنا؟ ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک بالکل ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطیاں ہوئی تو ہم کیسے نہیں کر سکتے؟ بالکل مگر بالکل. بات یہ ہے کہ آج تک ہمیں کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. ہاں، آج تک. ویل ڈن. ٹھیک ہے. یہ آپ کی کامیابی کا ایک جو ہے نا نشانی ہے کامیابی کی. اور کچھ معاملوں میں کچھ غلطیاں فہمی تو ہم بھی شاگردوں سے گریز کرتے ہیں جی کہ جی. ہم بھی ان کو ایشو نہیں بناتے ان کی باتوں کا. کچھ پتہ چلے بھی نا ہاں جی، ہاں تو جی. سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ سمجھ جائے. ٹھیک ہے. باقی چلتے رہتے ہیں سارے کام. یہاں میرے تو آج کل خیال میں نے دیکھا ہے، اس سال میں دیکھا ہے، جی جی. بڑے بڑے نام دیکھے ہیں. وہ استاد کے شاگرد ہیں، استادوں نے کبوتر اڑائے، اگلے سال اسی استاد کے ساتھ کی بازی لگی. نہیں تو یہ ابھی آپ 4 دن پہلے جو ادھر ہمارے ڈیرے پہ ایک کاٹتا سہیل انصار پارٹی کا اور سیف خان کا، تو وہ جو جس چھت سے بازیاں لگی ہیں سہیل انصار نے لگائی ہیں سیف خان سے، تو وہ پہلے حسین علی کا ہی شاگرد تھا، سیف خان پارٹی کا ہی تھا. استاد کے ساتھ بازی لگی. ابھی استاد اور شاگرد کی آپس میں بازیاں لگ گئی ہیں. جی جی، بالکل بالکل. یہ غیر مناسب بات ہے. غیر مناسب. اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں، پارٹی چھوڑ بھی دیتے ہیں، جی جی. تو کبھی ایسا نہ ہے کہ اپنے استاد کے سامنے سر اٹھا کے نہ بیٹھے. ہاں، ماشاء اللہ، بہت خوب جی، بہت اچھا میسج ہے. آپ بھائیوں سے ایک تفصیلی سیر حاصل گفتگو ہوئی، آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا، تو یہ میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ بھائیوں کی ذرہ نوازی ہے جی. ماشاء اللہ. اس کے ساتھ آپ بھائیوں سے اجازت چاہیں گے جی. ٹھیک ہے جی. شکریہ. ذرا اللہ حافظ بول دینا جی. اللہ حافظ. اللہ اوکے تعالیٰ جی. سب کو اپنی زبان میں رکھے جناب. ہاں جی، اوکے جی. تو یہ تھے چیمپئن پنجاب استاد مٹھو لالی اور استاد حسن لالی صاحب. تو میرے ناقص عقل میں جو ان سے سوالات آئے میں نے ان پیارے بھائیوں سے کیے، انہوں نے بھی بہت فراغ دلی سے ان کے جوابات دیے. تو اب اپنے بھائی کاشف چنیوٹی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.